Hello students, very good morning to you all. I hope you all have understood chapter 1 of class 7, that is nutrition in living organisms, plants. And now it is time to do the question answers. So let us do the question answers of this chapter. First one here is fill in the blanks. खाली स्थान भरें. First is animals are heterotrophs as they cannot synthesize their own food. Second is the roots of a plant absorb water and mineral from the soil. We have to fill roots in the blank. Third one is during photosynthesis plants take in carbon dioxide and release oxygen. Fourth, stomata are the tiny pores through which leaves exchange gases. Fifth is insect-eating plants are called insectivorous plant. इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स को insectivorous plants कहते हैं. Essential raw material needed for the process of photosynthesis and available in the soil is water and available in the air is carbon dioxide. So these are all about the fill in the blanks. And now it is time for match the following. दिए गए वर्ड्स को करेक्ट आंसर के साथ मैच करना है. फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल को मैच करेंगे लीफ से बिकॉज क्लोरोफिल इज फाउंड इन लीफ. लाइकेंस. लाइकेंस in this we can see the symbiotic relationship. Third one is fungi and we can know that fungi are saprotrophs. Amarbale also called dodder. It is a parasite because it comes under the category of parasitic plants. And plants are matched with autotrophs because they synthesize their own food. And now it is time for tick the correct option. Green plants that can synthesize their own food are known as autotrophs. Second one is the food factory of the plant is its leaf because plants जो हैं अपने leaf में ही food produce करते हैं. Third is which of the following is an insectivorous plant? The answer among this is picture plant. Picture plant एक insectivorous plant है. Mushroom is an example of an. Mushroom कैसे प्लांट का एग्जाम्पल है? मशरूम एज वी नो इज ए सेप्रोट्रॉप. सो वी विल टिक सेप्रोट्रॉप. फिफ्थ वन इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल इज राइजोबियम. राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरियम है जो फ्री ऑक्सीजन को सॉइल में फिक्स करता है. सो दिस वॉज अबाउट द टिक द करेक्ट ऑप्शन. And now we will discuss the question answers. The first question is, why is nutrition important for a living organisms? Living organism के लिए nutrition क्यों जरूरी है? The answer is, nutrition helps living organisms to grow, repair the damaged parts of their bodies and to provide energy to carry out life processes. So, it is important for living organisms. And question 2 is, how do green plants synthesize their food? Green plants food को कैसे synthesize करते हैं? The answer is, green plants synthesize their food by the process of photosynthesis. Green plants photosynthesis के द्वारा food synthesize करते हैं. Third question is, state the role of vessels present in a plant. प्लांट में जो वेसल्स होते हैं उनका क्या रोल है? द आंसर इज वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वेसल्स जो हैं वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के अलग अलग भागों में. क्वेश्चन 4 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. इन टर्म्स के डेफिनेशंस लिखने हैं. फर्स्ट वन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. And its definition is, in symbiotic relationship, two organisms live in close association and develop a relationship that is beneficial for
both. Second is nutrients. What are nutrients? The components of food like carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals are called nutrients. The third one is saprotrophic mode of nutrition. It is the mode of nutrition in which some plants feed on dead and decaying matter is called saprotrophic mode of nutrition. The definition of photosynthesis is the process by which green plants make their food in the presence of sunlight is called photosynthesis. These all were the definitions. And now question 5. When some wheat dough was left in the open for a few days, it started emitting foul smell. State why. आटा गूंद के जब उसका डो हम खुले में रख देते हैं कुछ दिनों के लिए तो उससे गंदी स्मेल आने लगती है. ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? Let us see the answer. When some wheat dough was left in the open for a few days, it started emitting foul smell because it becomes spoiled due to the action of fungi and bacteria present in air. ये जो wheat dough है कुछ दिनों खुले में रखने के बाद स्पॉइल हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया जो हवा में मौजूद होते हैं. नाउ द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन ई. फर्स्ट पार्ट इसका है व्हाई वुड लाइफ बी नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगा. ऐसा क्यों है? द आंसर इज लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज it is supplying food directly or indirectly to all living organisms. It is also providing oxygen to all living organisms for respiration. Photosynthesis के द्वारा ही food directly या indirectly all living organisms को मिलता है और साथ ही photosynthesis के दौरान रिलीज हुआ ऑक्सीजन सारे living organisms के respiration के लिए ज़रूरी होता है. The question 2 is give reasons for the following. हमें कारण बताना है. The first statement is mushroom is a saprotroph. मशरूम को saprotroph क्यों कहते हैं? The reason is mushroom is a saprotroph because it feed on dead and decaying matter. मशरूम एक saprotroph है क्योंकि वो dead and decaying matter को पे feed करता है, उससे अपना nutrition लेता है. The second one is Sun is the ultimate source of energy for all living organisms. सारे living organisms के लिए source of energy केवल sun है. ऐसा क्यों है? The sun is the ultimate source of energy for all living organisms because green plants synthesize their food by the process of photosynthesis and this energy of sun is passed on to all living organisms through the plants in the form of food. ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी की मदद से फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोड्यूस करते हैं और यही फूड जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पास ऑन होता है बाय द फूड चेन. इसलिए ऐसा माना जाता है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्वेश्चन सी इज़ द लीफ ऑफ ए प्लांट डाइज आउट if its stomata are blocked. The reason is the leaf of a plant dies out if its stomata are blocked because the plant cannot take gases like carbon dioxide and oxygen from the atmosphere. हम सभी जानते हैं कि एस्टोमाटा ऐसे स्मॉल एपर्चर्स होते हैं जहाँ से प्लांट जो है गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और अगर इसे क्लोज कर दिया जाए तो ये गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा और प्लांट का जो लीफ है वो डाई आउट हो जाएगा यानी सूख जाएगा, मर जाएगा. द क्वेश्चन डी हियर इज लीफ इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. लीफ को फूड का फैक्ट्री क्यों कहते हैं? बिकॉज प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड इन देयर लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लांट्स जो है
वो लीफ में फूड सिंथेसाइज करते हैं। क्वेश्चन ई इज lichen is a living partnership between a fungus and an alga, and this partnership is beneficial to both. और इसका रीज़न क्या है? The reason is because the fungus absorb water and provide shelter. जो फंगस है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है, और एल्गा जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोड्यूस करता है। So it is called the living partnership between a fungus and an alga. Why do some plants feed on insects? How does a picture plant catch insects? कुछ जानवर कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं और पिक्चर प्लांट किस प्रकार इंसेक्ट्स को कैच करता है, पकड़ता है? The answer is Some plant feed on insect for their nitrogen requirements. कुछ plants insects को खाते हैं अपने nitrogen requirements को पूरा करने के लिए। And picture plant has leaf modified to form a picture with lead. Picture plant के leaf जो होते हैं एक सुराही नुमा रूप में modified होते हैं with a lead, एक ढक्कन के साथ। And also has an inner lining of hair pointing downwards. और यही नहीं, इस पिक्चर के अंदर एक इनर लाइनिंग ऑफ हेयर होता है जो डाउनवर्ड पॉइंटिंग होता है। When an insect enters, it cannot climb back out against the hairs. जब एक इंसेक्ट अंदर एंटर करता है तो वो हेयर के अगेंस्ट बाहर नहीं निकल पाता है और लास्टली बॉटम ऑफ द लीफ में गिर जाता है और वहाँ डाइजेस्ट कर लिया जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा। इस तरह से पिक्चर प्लांट इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। क्वेश्चन 4 इज हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प ईच अदर इन देयर सर्वाइवल? राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए? द आंसर इज राइजोबियम कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर इनटू यूजेबल फॉर्म। राइजोबियम बैक्टीरियम जो है ये नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड द लेग्यूमिनस प्लांट इन टर्न प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरियम। और ये लेग्यूमिनस प्लांट जो हैं उस बैक्टीरियम को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इन दिस वे द राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प ईच अदर। इस तरह से ये बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट एक दूसरे को मदद करते हैं। Now here is the web chart and you have to complete it. यहाँ देखिए प्लांट और उसके नीचे है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ फ्रॉम एयर। थर्ड हमारा होगा वाटर बिकॉज इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट, और उसके राइट में हम भरेंगे क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। ये चारों कंपोनेंट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा किन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। दिस वाज द वेब चार्ट एंड नाउ वी विल डू द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये छोटी सी जो स्टोरी है इसको पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। द टीचर टोल्ड हर स्टूडेंट्स द स्टोरी ऑफ फिल्म दोस्त। टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को दोस्त फिल्म की स्टोरी सुनाई। She told them that in that film, the friendship between a visually challenged boy and a lame boy helps them both to face and overcome the very many challenges of their day-to-day life. उन्होंने उस कहानी में ऐसे दो लड़कों की दोस्ती के बारे में डिस्कस किया जिनमें से एक जो है विजुअली चैलेंज था, यानी देखने में सक्षम नहीं था, अंधा था, और दूसरा लंगड़ा था। ये दोनों जो हैं इनकी दोस्ती के कारण इन दोनों ने एक दूसरे को हेल्प किया लाइफ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए। She went on to compare their friendship with the symbiotic relationship between two organisms। और उन्होंने, टीचर ने इन दोनों की फ्रेंडशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से कंपेयर किया, इसकी तुलना की
जो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। क्वेश्चन 1 नाउ एज पर द स्टोरी। अब इस स्टोरी के बाद पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी टू वैल्यूज दैट अकॉर्डिंग टू यू मस्ट हैव बीन देयर इन द टू फ्रेंड्स ऑफ द फिल्म दोस्त। दोस्त फिल्म में जो दो लड़के हैं उनमें कौन से दो वैल्यूज़ हैं जो ज़रूरी हैं। द टू वैल्यूज़ मस्ट बी ऑनेस्टी एंड हेल्पफुल। वे दो वैल्यूज़ जो हैं वो ऑनेस्टी एंड हेल्पफुल होने चाहिए। द सेकेंड इज, इन वॉट वे इज़ द फ्रेंडशिप बिटवीन टू बॉयज़ सिमिलर टू द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स। किस तरह से इन दोनों लड़कों की दोस्ती सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के जैसी है। द आंसर इज, द टू बॉयज़ हेल्प ईच अदर टू फेस चैलेंजेस ऑफ देयर डे टू डे लाइफ। इन दोनों लड़कों ने एक दूसरे की मदद की रोज़ की ज़िंदगी में चैलेंजेस फेस करने के लिए, रोज़ की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को फेस करने के लिए इन दोनों लड़कों ने एक दूसरे की मदद की। इसलिए इस तरह के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से कंपेयर कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स के बारे में आपने पढ़ा, जैसे ट्री एंड एल्गा के बारे में पढ़ा, आपने लाइकेंस के बारे में भी पढ़ा, और आपने राइजोबियम एंड बैक्टीरियम जो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ रहते हैं इनके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ा। आप कोई भी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ हमने राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल दिया है। सो द आंसर इज, the relationship between rhizobium bacterium and leguminous plant is an example of symbiotic relationship. These all were about the question answers. I hope you all understood and enjoy this learning. Okay, have a happy day.